Hello, everybody. I'm your mentor, Anika Meman. Today, we are going to learn sentence correction from CSS Past Paper 2023. So, let's begin with our first sentence. His knowledge of languages and international relations aid him in his work. Now, here the problem lies with subject and verb agreement. This is your subject, his knowledge of languages and international relations, and this is your verb. So basically आपको लग रहा होगा कि this is a plural subject because languages itself plural है, then and के साथ international relations भी आ रहा है, ठीक है? हालांकि it's not a plural verb. Your subject starts with his knowledge, right? And the word knowledge is an uncountable noun जिसकी कोई plural form नहीं होती, and it would always carry a singular verb, right? So here, according to the present simple tense rule, आपके पास जब singular subject होता है, that is his knowledge, तो उसके साथ जो verb use होता है उसके last में या तो आप s, es या फिर ies का इजाफा करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम s का इजाफा करेंगे. Now the final sentence would be his knowledge of languages and international relations aids him in his work. Full stop. The next is the ambassador with his family and staff invite you to a reception at the embassy on Tuesday afternoon. Now here the same problem lies with the subject verb agreement. Apparently ये आपको एक plural subject लग रहा है क्योंकि यहाँ पर the ambassador भी है, फिर उसके साथ उसकी family भी है, and then the staff, right? लेकिन ये एक plural subject नहीं है, ठीक है? हम यहाँ पर एक रूल समझ लेते हैं. जब आपके पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो या दो से ज्यादा हो, लाइक इन दिस केस, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास सब्जेक्ट 1 है द एम्बेसडर, राइट, और सब्जेक्ट 2 है आपके पास हिज फैमिली एंड स्टाफ, राइट, और ये दो सब्जेक्ट आपके पास कनेक्टेड हो इनमें से किसी एक फ्रेज के साथ, एज वेल एज के साथ, या फिर अलोंग विद के साथ, या फिर टुगेदर विद के साथ, या फिर सिर्फ विद के साथ, ठीक है? तो रूल ये कहता है कि आपका जो वर्ब है दैट वुड ओनली अग्री विद सब्जेक्ट 1, ओके? यानी कि आपका वर्ब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेगा. तो अगर आपका सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है, ठीक है, सो योर वर्ब वुड बी सिंगुलर, ठीक है? और आपका अगर सब्जेक्ट 1 जो है वो प्लूरल है सेंटेंस में, तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, राइट? अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे बता देती हूँ. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर द एम्बेसडर होता और यहाँ पर आपको चॉइस दी जाती कि इज या आर में से एक सिलेक्ट करें, तो आप सिर्फ और सिर्फ इज सिलेक्ट करते, ठीक है? आप देखते ही नहीं विद हिज फैमिली स्टाफ है या नहीं है, ठीक है? यू विल नॉट कंसिडर दिस सब्जेक्ट, दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके? लेकिन अगर यहाँ पर दी एम्बेसडर्स होता फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर आर सिलेक्ट करते, ठीक है? क्योंकि आपका जो वर्ब है दैट वुड ओनली फॉलो योर फर्स्ट सब्जेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ इन दिस सेंटेंस द एम्बेसडर क्योंकि सिंगुलर है, उसके साथ आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूल्स हैं, वर्ब के साथ एस ई और ई एस और आई एस का इजाफा होता है, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पर इनवाइट नहीं इनवाइट्स होना चाहिए. नाउ द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द एम्बेसडर comma with his family and staff comma invited you to a reception at, sorry, not invited but invites, at the embassy on Tuesday afternoon. Full stop. So this is your correct sentence.
So the next is, this year he will sit in the CSS examination. Now the problem lies with this phrasal verb, sit in. Sit in means to stage a protest. Like the labor union decided to sit in to advocate their rights, right? तो ये आपके पास sit in मतलब protest होता है. यहाँ examination में बैठने के लिए either you can write sit for or you can write take. Okay, so the right sentence would be, this year he will sit for the CSS examination, or this year he will take the CSS examination. Full stop. This is your correct sentence. The next is, when he came back from vacation, Aslam and me planned to look for another apartment. Now here you can see that this Aslam is your subject. And के बाद भी कोई subjective pronoun आना चाहिए था, but me आपके पास objective pronoun है, ठीक है? So यहाँ तो आ जाएगा I. Now this sentence, when he came back from vacation, जब वो vacation से आया, right? Aslam and I, अब इसका मतलब होना चाहिए था plan to look for another apartment. असलम और मैंने इरादा कर लिया था अपार्टमेंट के लिए सर्च आउट करने का, ठीक है? सो दिस एक्शन हैज हैपेंड बिफोर ही केम, राइट? तो ये आपके पास टाइम लाइन में ये एक्शन आपके पास पहले हुआ है कि उन्होंने इरादा पहले कर लिया था टू लुक फॉर अनदर अपार्टमेंट, और वो आया बाद में, ठीक है? तो जब आपके पास इस तरह का सेंटेंस आता है जिसमें एक आपके पास टाइम क्लॉज होती है व्हेन ही केम, तो ये आपके पास रहती है पास्ट सिंपल में, विच इज करेक्ट, ठीक है? बट आपके पास जो दूसरी क्लॉज होती है उसकी फॉलो अप क्लॉज, वो आपके पास होती है पास्ट परफेक्ट में. अब यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग. ओके, सो ये सेंटेंस हो जाएगा आपके पास, when he came back from vacation, comma, Aslam and I had planned to look for another apartment. Full stop. This is your correct sentence. इसकी एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ. When I reached the station, the train had left. Right? कि जब मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन जा चुकी थी, तो अब ट्रेन मेरे जाने से पहले ही जा चुकी थी, ठीक है? तो ये जो टाइम क्लॉज है इसके साथ हमने यूज किया है पास्ट सिंपल, और ये जो नेक्स्ट क्लॉज है टाइम क्लॉज के बाद वाली, उसके साथ हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट. ओके, द नेक्स्ट इज, इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज दे शैल बी पनिश्ड. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में से कोई शोर करेगा तो उनको सजा दी जाएगी. सो अब यू सी, आप अगर शोर करेंगे तो सजा आपको दी जाएगी ना, तो सजा उनको तो नहीं दी जा सकती. सो दिस यू इज मिसिंग हेयर और उसकी जगह पर दे लगा हुआ है, ठीक है? तो ये एरर है आपके पास, दे शल दोनों आपके पास रॉन्ग है, ठीक है? तो जब शोर आप करेंगे तो सजा भी आपको दी जाएगी. सो इट्स लाइक, if some of you make a noise, comma, you will be punished. Now this is your right sentence. The next is, he came to me to inquire what is the salary attached to the appointment. Now here this sentence, he came to me to inquire, yahan tak to it's fine. Okay, now this is your indirect question ना, what is the salary attached to the appointment. अगर तो ये direct question होता
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द सैलरी अटैच्ड टू द अपॉइंटमेंट क्वेश्चन मार्क, तो दिस वाज फाइन, राइट। बट क्योंकि यहाँ पर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे पता चला इनडायरेक्ट है? क्योंकि इससे पहले आपके पास ऑलरेडी एक क्लॉज है, ही केम टू मी टू इंक्वायर, राइट। यहाँ पर अगर डायरेक्ट WH वर्ड से स्टार्ट होता तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता। अब चूंकि ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगता जब इनडायरेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके सब्जेक्ट के बाद आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, विच इज फाइन यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है दैट वुड कम आफ्टर द सब्जेक्ट, राइट। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखें क्या है, द सैलरी अटैच टू द अपॉइंटमेंट, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, एंड देन आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से ये करेक्ट कर दिया है और इसके आगे हम ये अटैच कर देते हैं, ही केम टू मी टू इंक्वायर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल करेक्ट सेंटेंस। I'm too tired that I do not hunt words and idioms in my English book. Now, if you know the usage of TOO and TO2 in one sentence, then this sentence would be easy for you. अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आई एम टू टायर्ड टू वॉक। इट मीन्स कि मैं इतना थकी हुई हूं कि मैं चल भी नहीं सकती। तो अगर मैं इसको रीफ्रेज करूं तो ये ऐसे रीफ्रेज होगा, आई एम टू टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, फुल स्टॉप, राइट। मैं चल भी नहीं सकती, आई कैन नॉट वॉक। सो हेयर हम इसको पढ़ लेते हैं, आई एम टू टायर्ड, मैं इतना थकी हुई हूं, दैट आई डू नॉट हंट। नाउ दिस डू नॉट इज रॉन्ग, आप यहाँ पर कैन नॉट का यूज कर सकते हैं, दैट आई कैन नॉट हंट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक, कि मैं वर्ड्स और इडियम्स इंग्लिश बुक में सर्च भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम इसको रीफ्रेज कर देते हैं, आई एम टू टायर्ड दैट आई कैन नॉट hunt words and phrase idioms in my English book. Or you may write it like this, I am too tired to hunt words and idioms in my English book. So these two can be your correct sentences. I hope this lesson has been fruitful for you. If you want more such learning content, be sure to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. See you the next time. God bless.